پھیلاؤ روکنے کے لیے ملک بھر میں لاک ڈاؤن، نماز جمعہ کے اجتماعات پر پابندی رہی، سیکیورٹی فورسز نے جگہ جگہ ناکے لگائے مگر عوام کی غیر سنجیدگی جاری۔ اسلام آباد اور پشاور سمیت کئی شہروں میں نماز جمعہ کے اجتماعات منعقد ہوئے۔ کراچی کے علاقے پیر آباد میں بھی پابندی کے باوجود نماز جمعہ کا اجتماع، پولیس کی حکومتی احکامات پر عمل درآمد کرانے کی کوشش پر شہری مشتعل، خاتون تھانے دار اور اہلکاروں پر پتھراؤ، جوڈیشل مجسٹریٹ نے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے گئے، اسپتالوں میں کیا سہولیات موجود ہیں؟ چیف جسٹس گلزار احمد نے کورونا سے نمٹنے کے لیے ناکافی انتظامات پر از خود نوٹس لے لیا، سماعت 13 اپریل کو ہوگی۔ مکمل لاک ڈاؤن نہیں کیا جا سکتا، ریاست میں اتنی سخت نہیں کہ تمام افراد کو گھر بیٹھے کھانا پہنچائے۔ معاون خصوصی شہزاد اکبر کی گفتگو، کہا اس بیماری سے لڑنے میں کچھ وقت لگے گا، تمام صنعتیں SOPs کے بعد آہستہ آہستہ کھولنے کا پروگرام ہے، ہم انڈسٹری کا پہیہ بند نہیں کر سکتے۔ ہماری پوری کوشش ہے کہ اس کا پھیلاؤ جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہو، جہاں زیادہ مریض ہوں گے وہاں سختی ہوگی لاک ڈاؤن کی، اور جہاں مریض کم ہوں گے وہاں آہستہ آہستہ ہم ایز ڈاؤن کر کے لوگوں کو اپنے کاموں پہ جانے دیں گے۔ زیادہ سخت لاک ڈاؤن کیا جائے گا، وزیر صحت پنجاب یاسمین راشد کی گفتگو، کہا لوگ تعاون کریں اور گھروں میں رہیں۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے کہا منظم طریقے سے امداد پہنچا رہے ہیں۔ ہماری جو ایفرٹس ہیں وہ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس ہونی چاہیے، کنسرٹڈ ایفرٹس ہونی چاہیے، کہ ایسا نہ ہو کہ ایک فیملی کو تو NGO سارے سامان پہنچا رہے ہیں، دوسری فیملی کو نہ پہنچا رہے ہیں۔ احساس پروگرام کے تحت امداد کی تقسیم کے دوران سماجی فاصلے کی اصطلاح بے معنی ہو گئی۔ ملتان کے علاقے قاسم پور کالونی میں بھگدڑ، امداد لینے والی خاتون جاں بحق، 20 خواتین زخمی، بھوانا، لاڑکانہ، بدین سمیت مختلف جگہوں پر بھی بدنظمی، لوگ امداد لینے کے لیے ایک دوسرے پر چڑھ دوڑے۔ احساس پروگرام کی امدادی رقوم کیسے حاصل کی جائے؟ وزیر اعظم کی معاون خصوصی ثانیہ نشتر نے ویڈیو میں SMS سے لے کر رقوم کی وصولی تک کا طریقہ کار بتا دیا۔ دہاڑی دار طبقے اور غریب خاندان کو حکومت کی طرف سے 12,000 روپے کی امداد ملے گی۔ آٹا چینی بحران کیسے ہوا؟ چینی برآمد ہوئی یا اسمگلنگ کی گئی؟ اصل محرک کون تھا؟ وزیر اعظم نے انکوائری کمیشن کو مختلف پہلوؤں سے تحقیقات کرنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعظم کو 25 اپریل کو فورنسک آڈٹ رپورٹ پیش کی جائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کا پشاور میں حیات آباد میڈیکل کمپلیکس کا دورہ، ڈاکٹرز کا حوصلہ بڑھایا، کہا پورا ملک اپنے طبی عملے کے ساتھ کھڑا ہے، جو کچھ بھی کر سکے کریں گے، دنیا بھر کو کورونا کے چیلنج کا سامنا ہے، ہم اچھی حکمت عملی سے صورتحال سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا پروٹوکول کے بغیر توسا شہر کا دورہ، انتظامیہ لا علم رہی، دفعہ 144 اور حفاظتی اقدامات کا جائزہ، لوگوں سے گھروں میں رہنے کی اپیل۔ میڈیا ہاؤسز کو پنجاب میں اشتہارات پر ٹیکس چھوٹ ملے گی، وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کا اعلان، کہا پنجاب حکومت اشتہارات کے سرکاری بقایا جات جلد ادا کرے گی۔ کورونا سے جاں بحق صحافی کے اہل خانہ کو 10 لاکھ روپے، جبکہ صحافی کی بیوہ کو تاحیات 10,000 روپے ماہانہ دیے جائیں گے، مثبت کردار پر 10 صحافیوں کو ایوارڈ ملے گا۔ خیبر پختونخوا کے سرکاری اسکول کے طلبہ کو پروموٹ کرنے کا فیصلہ، پہلی جماعت سے 8ویں تک طلبہ کو پاس کر کے نتائج جاری کرنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے بہنوئی سید مہدی شاہ کی کراچی میں تدفین کر دی گئی۔ سید براد علی شاہ نے ویڈیو پیغام میں کہا سید مہدی شاہ کا کورونا ٹیسٹ مثبت آیا تھا، لیکن انہوں نے وائرس کو شکست دے دی تھی۔ دنیا بھر میں کورونا سے ہلاکتیں، 97,19,600 سے زائد افراد متاثر، اٹلی میں 18,279، امریکہ میں 16,697، اسپین میں 15,843 افراد ہلاک ہوئے،
फ्रांस में 12,210, बेल्जियम में 3,019 और नेदरलैंड्स में 2,396 अफराद जान से गए। बर्तानिया में कोरोना से हलाकतें 7,978 तक जा पहुंची। और बर्तानिया में कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस कार्डियक करप्ट प्रिंसिपैलिटी स्टेडियम फील्ड अस्पताल में तब्दील। 2000 बेड्स लगाए जा रहे हैं। 650 मेडिकल वर्कर्स खिदमत अंजाम देंगे। अस्सलामुअलैकुम। आज 6 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि गंदुम व आटा बहरान के मामले पर FIA की जानिब से जिम्मेदार करार दिए गए साबिक सेक्रेटरी खुराक नसीम सादिक ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को 38 सफ़ात पर मुश्तमिल खत लिख दिया। इस खत में नसीम सादिक ने अपने ऊपर लगाए गए दे दिया। नसीम सादिक ने इल्जाम लगाया है कि इंक्वायरी कमेटी जानिबदार है। इस कमेटी के 2 मेंबरान ने इन पर DG खान में 2 घर अलॉट करवाने के लिए दबाव डाला। वजीर आजम इमरान खान को मिसगाइड किया जा रहा है। आपको इस अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। गंदुम व आटा बहरान के मामले पर FIA की जानिब से जिम्मेदार करार दिए गए साबिक सेक्रेटरी खुराक नसीम सादिक ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को 38 सफ़ात पर मुश्तमिल खत लिख दिया। इस खत में नसीम सादिक ने अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। नसीम सादिक ने इल्जाम लगाया है कि इंक्वायरी कमेटी जानिबदार है। इस कमेटी के 2 मेंबरान ने इन पर DG खान में 2 घर अलॉट करवाने के लिए दबाव डाला। वजीर आजम इमरान खान को मिसगाइड किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन कहते हैं, मुझे मेरी मिल्स के होने वाले ऑडिट पर कोई एतराज नहीं है। ना कभी मैंने कुछ छुपाया है और ना कुछ छुपाने की जरूरत है। जहांगीर तरीन ने ट्वीट किया कि कमीशन को बताना होगा सिर्फ 9 शुगर मिल्स को ऑडिट के लिए सिलेक्ट करने का क्या तरीका है। अहम खबर आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन कहते हैं, मुझे मेरी मिल्स के होने वाले ऑडिट पर कोई एतराज नहीं है। ना कभी मैंने कुछ छुपाया है और ना कुछ छुपाने की जरूरत है। जहांगीर तरीन ने ट्वीट किया कि कमीशन को बताना होगा सिर्फ 9 शुगर मिल्स को ऑडिट करने का क्या तरीका है। चीनी बरामद हुई या बैरून मुल्क स्मगल की गई। आटा चीनी बहरान की तहकीकाती रिपोर्ट सामने आने पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने मजीद पहलुओं की भी तहकीकात करने की हिदायत कर दी है। तहकीकाती कमीशन को फोरेंसिक ऑडिट की हिदायत भी की गई है। ज़राए के मुताबिक काबीना इजलास में बाज़ वज़रा ने 70% तक चीनी स्मगल होने की निशानदेही की थी। कमीशन के सरबराह वाजिद ज़िया ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। आपको बताएं कि चीनी बरामद हुई या बैरून मुल्क स्मगल की गई। आटा चीनी बहरान की तहकीकाती रिपोर्ट सामने आने पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने मजीद पहलुओं की भी तहकीकात करने की हिदायत कर दी है। तहकीकाती कमीशन को फोरेंसिक ऑडिट की हिदायत भी की गई। ज़राए के मुताबिक काबीना इजलास में बाज़ वज़रा ने 70% तक चीनी स्मगल होने की निशानदेही की थी। कमीशन के सरबराह वाजिद ज़िया ने तहकीकात का आगाज कर दिया। कोरोना वायरस से निपटने के लिए क्या इक़दाम उठाए गए, अस्पतालों में क्या सहूलियात हैं। चीफ जस्टिस गुलजार के लिए नाकाफी सहूलियात पर पहला खुद नोटिस ले लिया। समाअत 13 अप्रैल को होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। अटॉर्नी जनरल, सेक्रेटरी सेहत और दाखिला को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। चारों एडवोकेट जनरल्स और चीफ सेक्रेटरीज को भी नोटिस जारी किए गए हैं। मुल्क में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए क्या इकदाम उठाए गए हैं, अस्पतालों में क्या सहूलियात दी गई हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने अपना पहला खुद नोटिस ले लिया। कोरोना वायरस से मुतालिक खुद नोटिस पर समाअत 13 अप्रैल को होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। अदालत उज़्मा की जानिब से अटॉर्नी जनरल, सेक्रेटरी सेहत, सेक्रेटरी दाखिला समेत चारों सूबाई एडवोकेट जनरल्स और चीफ सेक्रेटरीज को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। एहसास प्रोग्राम की इमदादी रकूम हासिल करने के लिए नई वीडियो जारी कर दी गई। वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी सानिया निश्तर ने वीडियो में SMS से लेकर रकम वसूली तक का तरीका कार बताया है। कहा, अगर आप मेहनत मजदूरी करते हैं और आपकी आमदन कोरोना वायरस की सूरत हाल में रुक गई हो तो आप हुकूमत की 12,000 रुपए की इमदाद हासिल करेंगे। अगर आप दिहाड़ीदार मजदूर हैं या किसी ऐसे दिहाड़ीदार मजदूर को जानते हैं जिसका रोजगार कोरोना वायरस की वजह से बुरी तरह से मुतासर हुआ है, और अगर आप हुकूमत पाकिस्तान के एहसास प्रोग्राम के तहत 12,000 रुपए की इमरजेंसी कैश की इमदाद लेना चाहते हैं तो फौरन हमें 8171 यानी कि 8171 पर अपना आइडेंटिटी कार्ड नंबर SMS करें। अगर आपको SMS आया है कि आप एहसास इमरजेंसी कैश के लिए अहल हैं और रकम के हसूल के लिए आपको बजरिया SMS आगाह किया जाएगा, तो तब भी आप दूसरे SMS का इंतजार करें। जब आपको ये SMS आए जिस पर तारीख लिखी हो तो तब आप अपने पैसे लेने जाएं। घरों से तब ही निकलें जब तारीख
के पास आए, क्योंकि लंबी लाइनें और हजूम से हमें हर हाल में बचना है, क्योंकि हजूम से कोरोना वायरस ज्यादा बढ़ता है। अगर आपको तारीख वाला और 12,000 वाला SMS आए तो आप बैंक के ATM से, बाजार से या कैंप से 12,000 ही वसूल करें। किसी को पैसे काटने की इजाजत नहीं है। ये पेमेंट का मैसेज आपको 8171 से ही आएगा। अगर इस किस्म का कोई जाली SMS किसी और नंबर से आए तो उस पर तवज्जो ना दें। वजीर आजम इमरान खान का पेशावर में हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स का दौरा, जहां डॉक्टर से गुफ्तगू में वजीर आजम ने कहा कि कोरोना वायरस से दुनिया भर को चैलेंज का सामना है। अच्छी हिकमत अमली से कोरोना की सूरत हाल से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा मुल्क अपने डॉक्टर्स के पीछे खड़ा है। आपको ये श्योर करता हूँ कि हम आपके साथ हैं। किसी चीज़ की भी जो भी हम कर सकते हैं ना, इंशाल्लाह आपके लिए हम करें। जो हम ट्रेंड्स देख रहे हैं ऑब्वियसली ये बढ़ेगा अभी सारी दुनिया में, जिस तरह और पाकिस्तान में भी एक पीक बढ़ेगी तो प्रेशर पड़ेगा भी आपके ऊपर ज़्यादा। लेकिन मैं इंशाल्लाह आपको फिर से ये श्योर करता हूँ कि सारी इस वक्त हमारी गवर्नमेंट की सिर्फ एक चीज़ है कि हमने कैसे अपनी मेडिकल कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करना है, और दूसरा कैसे हमने लोगों को, आवाम को ये जो एक बैलेंस भी करना है। एक तरफ फैल भी रही है, दूसरी तरफ लोग भूख से ना मरे, तो वो बैलेंस कर रहे हैं। लेकिन मैं आप सबको कहना चाहता हूँ इंशाल्लाह आपके साथ पूरी तरह काम करना है। कराची के इलाके औरंगी टाउन में बनारस चौक के करीब पाबंदी के बावजूद नमाज जुमा अदा करने की कोशिश की गई। नमाज जुमा का इज्तिमा रुकवाने पर खातून SHO हमले डिस्ट्रिक्ट अदालत ने रिपोर्ट तलब कर ली। पीराबाद थाने की हुदूद बनारस चौक पर पाबंदी के बावजूद नमाज जुमा का इज्तिमा मुनक्किद करने से रोकने पर खातून थानेदार और एहलकारों को ज़दोकोब किया गया। जामे मस्जिद औरंगी टाउन में हुजूम के पुलिस पर तशद्दुद केस में मुकामी अदालत ने नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने कहा कि खातून SHO सिंध हुकूमत की पाबंदी पर अमल दरामद करवा रही थी। हुकूमती इक़दाम पर अमल दरामद कराने में रुकावट बनने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि कराची में मजीद 86 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है। मरीजों की कुल तादाद 1214 हो गई है। उन्होंने वीडियो पैगाम में कहा कि सैयद मेहंदी का कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आया था। उन्होंने वायरस को शिकस्त दे दी थी। सिंध में इस वक्त तक आज सुबह तक 12,209 टेस्ट हुए हैं। टोटल 1214 लोग पॉजिटिव हैं। 86 अफराद पिछले 24 घंटों में पॉजिटिव हुए हैं। जो इस मर्ज से सेहतियाब हो गए हैं उनकी तादाद 358 है। जो इस मर्ज से अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं उनकी तादाद 22 है। एक डेथ हुई मेरे बहनवी सैयद मेहदी शाह, 8 मार्च को उनको कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आया था। कोरोना से तो वो जंग जीत गए थे, लेकिन जो उसकी वजह से उनको पल्मोनरी प्रॉब्लम्स, उनके लंग्स और रीनल प्रॉब्लम्स जो हुए थे, उसकी वो ज़िंदगी से जंग हार गए। अल्लाह ताला को कल रात को प्यारे हो गए। वज़ीर आला पंजाब ने रात गए बगैर प्रोटोकॉल के तौसा शरीफ का दौरा किया। कोरोना से बचाव के हिफाजती इंतजाम का जायजा भी लिया। वज़ीर आला का कहना था कि नादार तबके को तनहा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का रात गए बगैर प्रोटोकॉल तौसा शरीफ का दौरा। वज़ीर आला ने कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए दफा 144 पर अमल दरामद के लिए इक़दामात, हिफाजती इंतजामात और अमन अमान की सूरत हाल का भी जायजा लिया। वज़ीर आला ने लोगों से घरों में रहने की अपील करते हुए कहा कि मौजूदा सूरत हाल में एहतियात करने की अशद ज़रूरत है। नादार तबके को किसी सूरत तनहा नहीं छोड़ेंगे। इंसाफ इमदाद प्रोग्राम के जरिए बैक वक्त लाखों खानदानों की माली इमदाद कौमी रिकॉर्ड है। पन्नू में जिला इंतजामिया और पुलिस की जानिब से कोरोना से लड़ने